So today many of you might be seeing me as this guy who has got everything sorted in his life. You must be seeing me as topper guy. He topped so many exams. He's pursuing a degree from one of the finest colleges. He's running a company at the age of 21. You must be seeing all these things and thinking ki wow. But the truth is that behind all of these went a lot of stuff which you don't see. And today I'm going to tell you those things and what decisions did I take in my life which enabled me to get to this position and how you can do it too. So for those of you who don't know me, my name is Kalpit Veerwal. I am currently a final year BTech Computer Science student at IIT Bombay. I was a topper in many examinations including JEE, NTSC and a lot of other things. And I started my own startup company called AcadBoost at the age of 19, and now I serve as its CEO. We basically provide educational services to school and college students, okay, ranging from JEE preparation to coding to machine learning, business education, etc. I will be telling more about it in the end. You can check out the app in the description section where a link will be provided. चलो यार बात करते हैं कि what this video is about. Okay, so I will be going back to class 8th 9th period जब मैं class 8th 9th में था. And I know many of you must be thinking कि अरे मैं तो 9th 10th में या मैं तो 11th 12th में या मैं तो college में हूँ. But don't worry, you will learn something from this based on what I did back then. Okay, trust me on this. So उस समय क्या था यार कि I was not a very bad student. I was never a bad student in my life, but I was not this topper guy back then. I was very normal student. मतलब मेरी क्लास में मेरी अच्छी रैंक आ जाती थी. That's it. I was not even the best person in my city or even in my class. Okay, I was just like one of you. है ना, आप में से कई सारे बच्चों की यार अपने स्कूल में अच्छी रैंक आ जाती होगी ना. That's it. I was no better than any of you. Okay, so that was then. लेकिन मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे यार जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. They were so great. मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि they were two girls in my class who were absolutely amazing. Like उनका जो नॉलेज, उनकी जो इंटेलिजेंस, उनकी जो IQ थी वो बहुत ही अलग लेवल थी. एंड मैं कितना भी ट्राई करता, आई वॉज नॉट एबल टू गेट बेटर मार्क्स देन देम. आई स्टडीड सो मच बट आई सिंपली कुडंट. ओके, और मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, एंड नाउ दैट आई लुक एट इट, नाउ व्हेन आई गो बैक इन टाइम, नाउ एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई रियलाइज कि वो क्यों हुआ एंड वाई आई वॉज एबल टू बिकम बेटर इवेंचुअली. ओके, एंड फ्रॉम दिस यू विल लर्न सम वेरी की इनसाइट्स. ओके, तो देखो बात करते हैं यार कि उस समय हुआ क्या था. सो वो जो स्टूडेंट्स थे ना जो मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे, वो क्लास 6th 7th से पढ़ाई करनी चालू कर दी थी उन लोगों ने. ओके, एंड व्हेन आई सी दिस इट मीन्स दैट दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्टफ आउटसाइड दिस सिलेबस बैक इन क्लास 6 7. जैसे आप लोग अभी JEE प्रिपरेशन कर रहे होगे, ओके, या कॉलेज में होगे, सो यू मस्ट बी स्टडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल करिकुलम. जैसे JEE के अंदर NCERT के बाहर की बहुत सारी चीज़ें आती है. यू आर टेकिंग सम कोचिंग, और इफ यू आर इन कॉलेज यू आर टेकिंग सम ऑनलाइन कोर्सेज, राइट? So that is what I'm talking about. You started your extracurricular journey in class 11th 12th by preparing for JEE, but those students started their journey in class 6th 7th itself. तो वो लोग क्या है कि यार इतना पहले से एक्टिव थे, तो उन लोगों की क्या है बहुत अच्छी नॉलेज और IQ बन चुकी थी जब वो उस एज में आए, जो मैं कह रहा हूँ ना 9th क्लास या 8th क्लास में. तो इसलिए मैं उनसे बेटर परफॉर्म कर ही नहीं पाता था, मैं कितना भी पढ़ता था. आई एम प्रिटी श्योर दिस इज रिलेटेबल टू एवरी वन ऑफ यू कि यार आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे, अगर आप 11th 12th में हो, कि यू नो उन्होंने सब चीज़ पहले से पढ़ रखी है और आप तो उनके सामने कुछ जानते ही नहीं हो. या इफ़ यू आर इन कॉलेज यू मस्ट हैव सीन द स्टूडेंट्स ना जो कंप्यूटर, जिनको पहले से कोडिंग आती है बहुत तगड़ी और उनके सामने आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो. सो यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, राइट? So that is exactly what was happening to me, and I used to feel so frustrated. I used to feel so sad कि यार why am I not able to do better than these people? I'm studying so hard. I'm sure you can relate to this. Okay, but उस समय मैंने एक life decision लिया. Okay, I probably did not take it very consciously, but I took this decision and it helped me become the person who I am. I took this decision that no matter what others are doing, बाकी लोग कुछ भी कर रहे हो, I will focus only and only on improving myself. अगर मुझे कल 3 चैप्टर्स आते थे, सो आई विल नो 4 चैप्टर्स टुडे. ओके, अगर कल मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ सीखी तो मैं आज उसको और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा. दैट इज़ ऑल आई डिड. आई डिसाइडेड कि यार मैं आपसे ये चीज़ करूँगा, बाकी लोग कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट केयर. आई जस्ट वॉन्ट टू डू वन थिंग राइट टुडे. इट डजेंट हैव टू बी एन अमेजिंग थिंग. मुझे ऐसा नहीं करना है कि भाई आज ही भाई थ्योरम निकाल दिया नया. नो, I simply have to do one more question. I simply have to do one more chapter. I simply have to do one more paragraph. I simply have to do one more task which helps me become a better version of myself. वो प्रोसेस मैंने शुरू करी क्लास 8th 9th पीरियड. मैंने रिजल्ट देखना छोड़ दिया. आई डिड नॉट सी कि यार बाकी लोग कैसा क्या कर रहे हैं. ओके, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो देखते हैं यार, है ना. यू शुड हैव सम इंस्पिरेशनल फिगर इन योर हेड. मतलब कोई एक पर्सन तो होना चाहिए ना जिसको आप देख के लुकअप करो कि यार मुझे ऐसा बनना है. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर हेड. ओके, एंड कॉमेंट हु इज दैट पर्सन फॉर यू. ओके, वो रहना चाहिए. बट उसके अलावा आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है. यू शुड नॉट फॉलो समवन्स फुटस्टेप या किसी को देख के कंपेयर नहीं करना है. अच्छा ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ. ओके, जस्ट
इम्प्रूव योर सेल्फ। ये चीज़ मैंने क्लास 8-9 में शुरू करी। स्टार्टिंग में आई डिड नॉट गेट रिजल्ट। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि अदर्स केप्ट ऑन गेटिंग बेटर मार्क्स देन मी। ओके, किसी के 80% आ रहे हैं, मेरे 50% ही आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं ना, वो प्री जेई वगैरह जो चलता है ना, ये क्लास बोर्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो एकदम से मतलब इंप्रूवमेंट नहीं आया, लोगों के मार्क्स मुझसे ज़्यादा ही रहे। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात नोटिस करनी चालू की विद इन 1 ईयर और सो, कि मैं उन लोगों से अब कम्पीट करने लग गया था। आई वॉज फाइनली एबल टू गेट टू देयर लेवल। पहले मुझे समझ में ही नहीं आता था कि यार ये लोग इतना खतरनाक कैसे कर रहे हैं। नाउ आई वॉज एबल टू परफॉर्म एट देयर लेवल। अब मुझे ऐसा नहीं था कि भाई यार समझ नहीं आ रहा वो लोग कैसे हैं, अब मैं उनके जैसा बनता जा रहा था। 1 more ईयर लेटर क्लास 11th में जाते ही मैं उनसे बेटर हो चुका था। आई वॉज गेटिंग बेटर मार्क्स देन देम, आई वॉज परफॉर्मिंग मच बेटर देन देम। ओके, और आज जैसे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें ना, तो उन्हीं 2-3% की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, आई टॉक्ड अबाउट दोज पीपल हु यूज्ड टू परफॉर्म बेटर देन मी क्लास 8-9। आज वो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक वन ऑफ देम इज प्लेयर्स इन द US। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आई एम पर्सनली डूइंग फाइनेंशियली बेटर। आज मेरे साथ 30 लोग काम करते हैं। सो वाई डिड ऑल दिस हैपन, कि यार वो लोग पहले मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर थे। सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि वो ऐसे जगह है, बट मैं यहाँ से उठ के आई वॉज एबल टू एस्केलेट इवन मोर। एंड यहाँ पे मैं आपको एक टर्म सिखाऊंगा विच इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग बेसिकली होता है, आपने यार पढ़ा होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है यार, आपकी ग्रोथ जो होती है ना वो एकदम ऐसे लीनियर हो रही होती है, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यार आपने जो पढ़ा है उस पर आप एक परसेंटेज इंप्रूवमेंट करते जाते हो। जैसे आपने डिसाइड किया कि यार आज मुझे 1% बेटर बनना है, तो आपने वो देखा होगा ना कि 1.01 रेज़ टू पावर 365 इक्वल टू 37, 38 इस तरह का। तो व्हाट इज दैट, कि आप अगर 1% थोड़ा रोज इंप्रूव होता है तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ जाते हैं एंड यू बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन आई सी माई सेल्फ इन हाइंडसाइट। मैं 8-9 में यार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना मैं पोटेंशियल रखता था, लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मेरे को थोड़ा रोज इंप्रूव होना है, मैं धीरे धीरे चलता गया एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लीनियर ग्राफ को क्रॉस करना चालू किया। और जब वो हो जाता है ना, उसके बाद योर ग्रोथ बिकम्स एक्सपोनेंशियल और आप बहुत आगे जाने लग जाते हो। ओके, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एवर सिंस। ओके, जैसे क्लास 11-12 में बात करूँ तो व्हेन आई एंटर क्लास 11-12 वहाँ पे भी कुछ बच्चे थे जो लेट से कोटा में थे या दिल्ली में थे, दे वर मच बेटर देन मी। वो हर चीज़ में मुझसे बेटर परफॉर्म करते थे। ओलंपियाड उनके ज़्यादा निकले हुए थे, KVPY उन्होंने ज़्यादा अच्छी रैंक ला रखी थी, सब कुछ बेटर था मुझसे। बट अगेन मैंने वही फॉर्मूला लगाया कि यार ठीक है, क्लास 11 में गुस्से हैं, हो सकता है हमने एक अच्छी डिसेंट सक्सेस अचीव कर ली है, बट वी आर नॉट येट डन। अभी भी बहुत लोग हैं कोटा में जो आपसे आगे हैं। सो आई अगेन स्टार्टेड माई सेम प्रोसेस कि भाई ठीक है, थोड़ा रोज करो। और एक समय ऐसा आया जब अपन फाइनली जेई में अच्छी रैंक आई, सबको पता ही है। ओके, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं था कि भाई डे 1 को देख लिया कि ये लोग मुझसे आगे तो हमेशा आगे ही रहेंगे। डिसाइड किया कि ओके दिस गाय इज बेटर देन मी, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहा है, हम भी एफर्ट डालेंगे, हम भी हो जाएंगे। ओके, कॉलेज में घुसा तो देखा कि यार कुछ लोगों को मुझसे बेटर कोडिंग पहले से आती है। देयर वर सम पीपल जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जीत चुके थे कोडिंग के अंदर व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज। ओके, वहाँ पे भी मैंने डिसाइड किया कि यार ओके अदर्स जो भी कर रहे करते रहो भाई, मुझे अपनी राह अलग बनानी है। एंड आई स्टार्टेड माई ओन थिंग। अपना मैंने ब्लॉग लॉन्च किया, यूट्यूब लॉन्च किया, अकेडबूस्ट लॉन्च किया, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड की। एंड नाउ आई डोंट हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, सो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती हैं एज लॉन्ग एज यू कीप एट इट। सो दिस इज बेसिकली वॉट यू डोंट सी। ओके, कोई पर्सन एकदम से पैदा ऐसा नहीं होता है कि ही इज बॉर्न सक्सेसफुल। एवरीवन बिकम सक्सेसफुल बाय देयर ओन हार्डवर्क। इफ यू लुक एट एनी फुटबॉलर, आपने सुना होगा ना, मेसी का एक कोट है कि इट टुक मी 17 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो उसको लोग कब जाने लगे? जब उसने अपना पहला गोल किया लेट से। लेकिन उससे पहले वो कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहा है वो भी आपको देखनी चाहिए कि यार वो कितने सालों से, 5-6 साल की उम्र से वो ट्रेनिंग में लग गया था। रोज थोड़ा 2-3 4-5 घंटे वो ट्रेनिंग कर रहा था फुटबॉल ग्राउंड में, तब जाके ही बिकेम लियोनेल मेसी, नॉट जस्ट बाय बर्थ। Similarly, if you decide today that you have to take control of your life, you have to take control of what you want to be in your hands, and you start working for it on day 1, that is today, then nothing is stopping you from becoming someone like them on let's say year 5. Okay, मैंने भी ये चीज़ें स्टार्ट की थी क्लास 8-9 के आसपास। कितना टाइम बीत गया? 9, 10, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और अब 4th ईयर में जाके मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। एंड अभी भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक दिस a huge company. I want Acadboost to one day be at the level of, I want it to be a global brand. वहाँ पे पहुँचने में हो सकता है मुझे 10 साल और लग जाए, बट आई नो कि मैं डे बाय डे थोड़ा ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, अपने ऑफिस को अच्छा मैनेज करूंगा,
आई कीप ऑन क्रिएटिंग ग्रेट कॉन्टेंट ऑन माई ऐप, तो कोई रोक नहीं सकता है। यू जस्ट हैव टू कंपाउंड वेल, यू जस्ट हैव टू कीप एट इट एंड डू थिंग्स वन बाय वन। अब यहाँ पे कुछ लोग पता है क्या पूछेंगे, यहाँ पे सम पीपल विल से कि अरे तुमने तो क्लास 8-9 में ये चीज़ समझ ली थी, हम तो क्लास 11-12 में आ गए हैं, हम तो कॉलेज में आ गए हैं, हाउ इज़ दिस यूजफुल फॉर मी? सो आई विल टेल यू हाउ इज़ इट यूजफुल फॉर यू। यू डोंट रियलाइज कि आपकी लाइफ बहुत लंबी है, इट इज़ अराउंड 80 years 100 years, unless you are an 80-year-old person watching this video, which is very unlikely, okay, you still have got a lot of time। अगर आप आज भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ग्रेजुएट भी हो, एंड इफ यू डिसाइड कि यार आज आई वांट टू चेंज माय लाइफ एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्किल, इट कुड बी अ डिग्री, इट कुड बी अ बिजनेस, व्हाटएवर यू वांट, और इट कुड इवन बी योर JEE preparation for class 11-12। इफ यू डिसाइड टुडे, you might not get results tomorrow, you might not get results after 1 month, you might not get results after 1 year, but 5 years के बाद, 10 years के बाद रिजल्ट दिखना पक्का चालू हो जाएगा। इन द केस ऑफ JEE it can even be in 1 year। ओके, सो प्लीज स्टार्ट इट। अब ये क्यों होता है मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो जब कोई पर्सन अच्छा करने लग जाता है ना अपनी लाइफ में, तो ही बिकम्स और शी बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिसेंट, वो छोड़ देते हैं काम करना, क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं दिख रहा होता है। एंड विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अबाउट बीइंग एट द टॉप, कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं ना लाइफ में, यू डोंट सी कि नीचे कितने लोग आपके compete करने के लिए आ चुके हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, विच इज़ वाई आई ट्राई कि मैं कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहूँ। ओके, तो वो क्या होता है कि यार जैसे कोई पर्सन एकदम मेहनत करके आगे बढ़ा है, तो ही और शी स्टार्ट्स कि यार ठीक है यार तो मैं पहुँच गया, मुझे नहीं करनी, वो हंगर उसमें चली जाती है। लेकिन यू इफ़ यू आर एट द बॉटम, यू स्टिल हैव दैट हंगर, एंड दिस इज समथिंग विच पीपल हु आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट डोंट रियलाइज कि यार जो पर्सन ऑलरेडी टॉपर है, ही ऑलरेडी हैज़ लॉस्ट हिज हंगर, क्योंकि वो टॉपर बन चुका है, अब उसको कोई प्रूव नहीं करना है कुछ, लेकिन आप नहीं बने हो। सो यू स्टिल हैव दैट हंगर, आप अभी भी मेहनत करोगे, हो सकता है वो कभी छुट्टी ले ले, हो सकता है कि दशहरा ब्रेक जब आए तो वो पर्सन पढ़ाई नहीं करे, बट यू विल, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम। सो दिस इज़ वाई दिस हैपन्स कि यार आप हर जो छोटा छोटा मौका मिलता है ना उसको यूज़ करोगे, तो धीरे 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 आपका रोम बिल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू टुक सम वैल्यू आउट ऑफ इट। आई विल क्विकली टेल यू अबाउट माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यार आप ये चीज़ करो मेरे तरीके से, फ्रॉम मी माई सेल्फ, तो मेरा एक पूरा प्लेटफॉर्म चलता है कॉल्ड अकेडबूस्ट, जहाँ पे हमारे 2 तरह के कोर्सेज मिलते हैं, एक होते हैं JEE कोर्सेज, एक होते हैं स्किल कोर्सेज। तो पहले JEE कोर्सेज का बताता हूँ। सो आई माई सेल्फ हैव कवर्ड द JEE सिलेबस, प्लस वी हैव अदर टीचर्स फ्रॉम टॉप कॉलेजेस, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, DPP सब कुछ मिलता है, which will help you become great at your JEE preparation। and I would suggest कि आप वहाँ का 2 year या 1 year का सब्सक्रिप्शन लीजिए, depending on when your JEE is। if you're in class 11 take a 2-year one, if you're in class 12 take a 1-year one, so that आप धीरे धीरे कंपाउंड करके बहुत अच्छा बन पाओ। ओके, वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन जो कराई है ना, जिस तरीके का कंटेंट है वो मैंने इस तरह का इंश्योर किया है जिससे मैं खुद अच्छा परफॉर्म कर पाया था। ओके, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि यार आई इनेबल मोर पीपल टू बिकम बेटर देन माई सेल्फ, दैट इज़ माई एंटायर एम, कि यार मुझसे बेटर रैंक जो लेके आएगा ना इस चैनल पे, मुझसे बेटर जो परफॉर्म कर पाएगा, दैट वुड मेक मी द मोस्ट हैप्पी। और अगर आप कॉलेज में हो, यू कैन ऑलवेज टेक आ स्किल लर्निंग कोर्सेज, जहाँ पे कोडिंग, मशीन लर्निंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पे क्या है कि यार आप ये चीज़ें सीख के अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, अपनी कंपनी खुद की स्टार्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अगेन माई गोल इज़ कि मुझसे बेटर कोडिंग, मुझसे अच्छा बिजनेस आप लोग करना सीख जाओ। ओके सर, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। यार लाइक करना, कमेंट करके बताना कि व्हाट इज़ योर गोल, how you're going to work at it, and let me know everything you want in the comment section. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thanks a lot for watching. My social media and the link of Acadboost app are in description. Don't forget to check it out. Thank you.